So we had done these three types of questions in our previous session. The questions based on finding an, finding n, and questions based on simultaneous equations. So just as a part of revision, based on all of these, let's do a couple of questions and then we'll change the variety of questions. Okay, take this question. If third term and ninth terms of the AP are 4 and -8 respectively, ठीक है, थर्ड टर्म दिया है, नाइन्थ टर्म दिया है, that means A3 is given, कितना है 4, A9 is given, कितना है -8. Yes, which term of the AP is 0? इसको ऐसा लिख देते हैं A plus 2D is equal to 4. इसको लिख देते हैं A plus 8D is equal to -8. Which term of the AP is 0? क्या 0 इसमें आता है? तो पहले A और D तो निकाल लो, है ना. Let's solve this simultaneously. A plus 2D is equal to 4. Subtract कर दो दोनों को, ये माइनस ये कटा. 8 minus 2 is 6D is equal to -12. D is equal to -2. थोड़ा फटाफट करते हैं, है ना. डाल दो यहाँ पे D is equal to -2. A plus 2 into -2 is equal to 4. A minus 4 is equal to 4. A is equal to 8. Yes, let us assume let an is equal to 0. Let the nth term be 0. Let an be 0, nth term. तो n की वैल्यू निकालना है यार, खत्म, है ना. So a plus n minus 1 into d is equal to 0. a की वैल्यू कितनी है 8 plus n minus 1 into d is -2 is equal to 0. n minus 1 into -2, ये 8 को इधर लेके जाओ -8. n minus 1 is -8 by -2. n minus 1 is 4. n is equal to 5. So the fifth term of this particular AP is 0. Fifth term is 0. क्लियर है. अगर AP लिखने बोलते तो AP भी लिख देते हैं. ये फर्स्ट टर्म 8 है ना, फिर 6, फिर 4, यस, फिर 2, फिर 0, यस और नो, फिर -2, फिर -4, -6, -8. देखो गिन लो, 1 2 3 4 5. फिफ्थ टर्म 0, 6 7 8 9. नाइन्थ टर्म इज -8. ऐसे करना है उसको, है ना. सो दैट्स अ स्मॉल रिकैप ऑफ व्हाट वी डिड लास्ट टाइम. अब इसका एक छोटा सा वेरिएशन लेते हैं. नाउ अगेन द फॉर्मूला स्टिल रिमेन्स द सेम, सिर्फ क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा पैटर्न, वेराइटी चेंज होगा. यस, देखो, द 17th टर्म ऑफ AP exceeds the 10th term by 7. Yes, the 17th term of AP exceeds the 10th term, मतलब 10th term से बड़ा है. यस और नो, कितने से? by 7, है ना. सो ये इक्वेशन आएगा A10 plus 7. आई बात समझ? The 17th term of the AP exceeds the 10th term by 7. या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है यार. A17 minus A10 exceeds मतलब बड़ा है. यस और नो, 17th term 10th term से बड़ा है by 7. So A17 minus A10 is equal to 7. This is the equation. बोल रहे हैं find the common difference, है ना. तो A17 को A plus 16D लिख सकते हैं क्या? ओके, माइनस के बाद ब्रैकेट 2. A10 is equal to A plus 9D is equal to 7. A plus 16D minus A minus 9D is equal to 7. A से A कटा, 16 minus 9 is 7. 7D is equal to 7. D is equal to 1. कॉमन डिफरेंस निकालने बोला था, निकाल लिया. That's it, done. Yes, सेम टाइप के एक दो क्वेश्चंस और करा देता हूँ. See, it says which term of the AP, कुछ AP दे रखा है, which term will be 132 more than the 54th term. Yes, कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 से बड़ा रहेगा, है ना. सो हम बोलेंगे let an be the term, yes, or nth term. Let nth term
विच टर्म, मतलब n पूछा है उन्होंने, टर्म नंबर पूछा है. लेट nth टर्म बी 132 more than 54th term. yes, nth टर्म क्या रहेगा, an. सो हम लिखेंगे an is 132 more than 54th term. समझा? nth टर्म is 132 more than 54th term. इंग्लिश को मैथ्स में लिख दिया यार सीधा सीधा, खत्म. yes or no? we have all the values available with us. देखो तो an क्या होता है, a plus n minus 1 into d plus 132 plus a54 क्या होगा, a plus 53d, है ना. a से a कटा, चलेगा, a से a कट गया. what is d here, look here, d is equal to 15 minus 3 12. डाल दो d की वैल्यू 12. n minus 1 into 12 yes is equal to 132 plus 53 into 12. solve it. 132 plus 12 3s are 36, 3 12 5s are 60 plus 3 63, है ना. n minus 1 into 12, yes, n minus 1 is equal to, ऐड करो इसको और डिवाइड बाय 12 कर दो. फिर 6 7 8 3 3 6 plus 1 7 divided by 12. n minus 1 is equal to 12 6 are 72, है ना. 4 8 12 4s are 48. n minus 1 is equal to 64. n is equal to 65. खत्म. so 65th term is 132 more than a54. that is the 54th term, है ना. मतलब इसका क्या है, a65 is 132 more than 1 या a54. आई बात समझ. सी टर्म का वैल्यू निकालने नहीं बोला है, a65 निकालना बोला है क्या, नहीं. a65 नहीं निकालते बैठना, n की वैल्यू पूछी है, विच टर्म नंबर पूछा है. इसके बदले अगर वैल्यू पूछते तो a65 निकालना पड़ता. ठीक है. सो वंस अगेन nth टर्म is 132 more than 54th टर्म. a से a कटा, इसको एक्सपांड किया, a54 को a plus 53d, d की वैल्यू डाल दो, n मिल जाएगा, खत्म. आ रही है बात समझ. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम पैटर्न पे. फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी. ओके, मतलब क्या निकालना है, a20 निकालना है. ओके, ऑफ द एपी whose third term is 7. okay, whose third term is 7 and the 7th term exceeds 3 times the third term by 2. the 7th term exceeds 3 times the third term by 2. यहां देखो, the 7th term is 3 times the third term. yes, third term is 7, the 7th term exceeds मतलब बड़ा है 3 times the third term by 2. थर्ड टर्म को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया प्लस 2 से बड़ा है ना. मतलब इसको दूसरे वे में ऐसे भी लिख सकते थे, the 7th term exceeds the 3 times the third term by 2. yes, सीधा सीधा वंस अगेन इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट किया. द 7th टर्म एक्सीड्स मतलब बड़ा है मतलब इसको इससे सब्ट्रैक्ट अगर मैं कर दूं, है ना, तो कितने से बड़ा है, 2 से बड़ा है. a7 minus 3 times the third term is equal to 2. खत्म. क्लियर है. अब कुछ बचा ही नहीं इसमें, है ना. a3 तो दे दिया 7, करेक्ट. तो यहां से मुझे एक इक्वेशन मिलेगा, a plus 2d is equal to 7. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. यहां से देखो, a plus 6d, a7 is a plus 6d minus 3 into a plus 2d is equal to 2.
a प्लस 6d माइनस 3a माइनस 6d, है ना, 3 इंटू ए 3 इंटू 2 है 6d इज इक्वल टू 2। 6d से 6d कटा, माइनस 2a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू माइनस 1, करेक्ट। a इज इक्वल टू माइनस 1, डाल दो ये वैल्यू यहां पे। यस, व्हाट डू वी गेट, माइनस 1 प्लस 2d इज इक्वल टू 7, 2d इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू 4। तो a का वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू मिल गया, खत्म। अभी a20 निकालना है। a20 इज a प्लस 19d, a कितना है, माइनस 1 प्लस 19 इंटू 4, ये आ गया माइनस 1 प्लस 76, या ये कितना हो गया, माइनस 1 प्लस 76 75। सो द 20th टर्म इज 75। सिंपल। So basically once again you are just using the same formula all over again and again, सिर्फ उसमें बहुत सारा variations आते जा रहा है। क्वेश्चन ठीक से समझो, that is the key। क्वेश्चन समझ गया, सब खत्म। Yes, let's change the pattern a little। Important question, how many 2-digit numbers are divisible by 3? 3 से divisible होने वाले कितने 2-digit numbers है? यस, तो रफ में क्या करेंगे, यहां ध्यान दो। विच इज द फर्स्ट स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर, सबसे छोटा 2-digit नंबर कौन सा है, 2-digit नंबर 10, 11, 12, ऐसे करते 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 कहां तक जाएंगे 2-digit नंबर, 99 तक। ठीक है, इसमें से हमको कौन से नंबर्स चाहिए, ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। यस और नो, यस। सो what is the first number which is divisible by 3? first 2-digit number, देखो पहले तो 2-digit numbers लिख दिए सारे। yes, 10, 11, 12 डॉट 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 98, 99, इतने ही 2-digit numbers है। उसमें से हमको सिर्फ वो चाहिए which are divisible by 3। तो पहला नंबर divisible by 3 कौन सा है, 12। which is the second number divisible by 3, 15 आएगा, 15, 18 डॉट 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 कॉमा, विच इज द लास्ट 2-digit नंबर डिविजिबल बाय 3, 99 है। सो 99 मिल गया कि नहीं, एपी। देखो a कितना है, 12, d कितना है, 3, 15 माइनस 12 इज 3। उन्होंने बोला है हाउ मेनी, हाउ मेनी मतलब n पूछा है, तो ये जो एपी बनाया तुमने, इसका n निकालो, खत्म। हाँ कि नहीं, व्हाट इज an, इसको लास्ट टर्म ले लो, an, nth टर्म, nth टर्म इज 99। तो यहां पे कितने टर्म्स है ये पूछा है, आ रही है बात समझ। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है, 99, a कितना है, 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 3, खत्म, है ना। 3 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 87, ये इधर आ जाएगा ना। सो n माइनस 1 इज 87 बाई 3, कितना होता है, 3 2 जा 6, 2 7 9, n इज इक्वल टू 30। सो देयर आर 30 2-digit numbers which are divisible by 3। चाहो तो गिन के देख लो, 12, 15, 18, 21, ऐसे लिखते जाओ 99 तक 3 का टेबल, है ना, और गिन के देख लो 30 नंबर्स आएंगे। आई बात समझ। दिस मेथड इज इंपॉर्टेंट। वैसे तो ये वाला क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी बन जाएगा, एकदम कॉमन सेंस से बनेगा, बट जरूरत नहीं है तुमको मेथड फॉलो करने। सो यू नीड टू राइट दिस, यू नीड टू राइट दिस, यू नीड टू राइट दिस एज वेल। इसमें हर स्टेप का मार्क्स रहेगा। क्लियर है? यस। एक और क्वेश्चन ले, हाउ मेनी 3-digit numbers are divisible by 7? कितने 3-digit numbers 7 से divisible है? तो पहले तो रफ में सारे 3-digit numbers लिखो। कहां से चालू होता है, 100 से, 101, 102, ऐसे करते 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 लिस्ट कहां तक जाएगी, 998, 999। ये हो गए सारे 3-digit numbers, बहुत सारे हैं। उसमें से हमको कौन से चाहिए,
वो चाहिए जो 7 से डिविजिबल है ना। तो AP बनेगा, 7 7 7 का डिफरेंस रहेगा। अब मुझे बताओ विच इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। ये 7 से नहीं जाता, ये भी नहीं जाता, ये भी नहीं जाता, है ना। 105 डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 105 इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 ना। फिर दूसरा कौन सा रहेगा, इसमें 7 ऐड कर दो तो 112, हाँ कि नहीं। तीसरा कौन सा होगा, उसमें और 7 ऐड कर दो तो 119, कॉमा डॉट 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 डॉट, 3 नंबर लिखना है, 3 नंबर लिखो फिर डॉट 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 डॉट, विच इज द लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। अब तुम बोलोगे सर कैसे चेक करना है, देखो सबसे लास्ट वाला नंबर उठा लो, सी 999 एंड डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, 29, 7 4 जा 28, 19, 7 2 जा 14, रिमाइंडर इज 5। यस, जो भी रिमाइंडर है 999 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आता है 999 माइनस 5, 999 माइनस 5 कितना होगा 994, डिवाइड करके देख लो, द लास्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, लास्ट 3 डिजिट नंबर इज 994, काम खत्म, है ना। अब पहला नंबर कैसे फाइंड करना है, कोई बात नहीं, फर्स्ट नंबर ले लो 100, उसको 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 3 0, यस 7 2 जा सॉरी 3 0 आया ना, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर आया यहाँ पे, यस और नो, 2 रिमाइंडर आया है, इसका मतलब क्या है 100 से 2 सब्ट्रैक्ट अगर करूंगा मैं, यस अगर मैं 100 से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, है ना, तो 98 मिलेगा, मतलब 98 इज डिविजिबल बाय 7, है ना। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा रहेगा +7 विच इज 105, तो डायरेक्ट मिलेगा। यार ये तो छोटा है, 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट का भी क्वेश्चन आता है, तो उसमें कैसे करेंगे, यस। सो देखो पहला नंबर उठाओ, उसको 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है, जो भी रिमाइंडर आएगा 100 से उसको सब्ट्रैक्ट करो तो 98, मतलब 98 इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। लेकिन हमको तो 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो उसमें 7 को ऐड कर दो तो 105, यस। लास्ट डिजिट फाइंड करने के लिए सबसे लास्ट डिजिट उठाओ, यस उसको 7 से डिवाइड कर दो, जो भी रिमाइंडर आएगा 999 से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस इज द 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, खत्म। आ रही है बात समझ, बहुत धीरे धीरे बता रहा है ना। सो A कितना है यहाँ पे 105, D कितना है देख लो 7 7, अरे सब 7 से डिविजिबल है तो +7 कर रहे हैं तो 7। N कितना है 994, nth term is this, find n, this is my question। आई बात समझ, देखो ये जो सब किया ना हमने इधर, ये सब रफ में करना है तुमको, यस उनको सिर्फ इससे मतलब है, आई बात समझ, खत्म। फिर n is equal to a plus n minus 1 into d, 994 is equal to 105 plus n minus 1 into 7, इसको इधर लेके आओ, है ना, तो कितना हो जाएगा 994 minus 105, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, यस और ये 889 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू n minus 1, ठीक है। प्लीज डिवाइड कर लो इसको, n minus 1 इज 7 1 जा 7, 1 8, 7 2 जा 14, 4 9, 7 7 जा, ठीक है। सो n आया 128, so there are 128 3 digit numbers, how many बोला है, तो लास्ट में आंसर लिखो नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा, मैं तो पक्का काटूंगा, यस। there are 128 3 digit numbers divisible by 7, आई बात समझ। सो स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप प्यार से अच्छे से फॉलो करो, फिलहाल धीरे धीरे ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगी, यस दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू इट। चलो एक और लास्ट इस टाइप का,
हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? देखो हमको नंबर्स कहां से कहां तक दिए, 10, 11, 12 ऐसे करते करते 248, 249, 250 ऐसे नंबर्स दिए। उसमें से बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ देम आर मल्टीपल्स ऑफ 4। यस, तो मुझे बताओ इसमें से पहला नंबर मल्टीपल ऑफ 4 कौन सा है? 12, हाँ कि नहीं? फर्स्ट नंबर इज 12, फिर 16 आएगा ऑब्वियसली, है ना, फिर 20 आएगा, फिर डॉट 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 विच इज द लास्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4। तो लास्ट नंबर उठा लो, यस 250, इसको 4 से डिवाइड कर दो, है ना, तो 4 6 जा 24, 1 0, 2 जा 8, 2 रिमाइंडर 2 आया, 250 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 248 इज डिविजिबल बाय 4, सो लास्ट नंबर इज 248। खत्म, n निकालना है, a इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क an की वैल्यू कितनी है? an 248। यस, सो फटाफट an is equal to a plus n minus 1 into d. an is 248 is equal to 12 plus n minus 1 into 4, इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट करो, 236 है ना, 4 इधर डिवाइड हो जाएगा, n minus 1, या सो 4 5 जा 20, 3 6 9 जा n minus 1, n is equal to 60. So there are 60 numbers between 10 and 250 which are multiples of 4. 4 के multiples है, ऐसे कितने numbers है? ऐसे 60 numbers है between 10 and 250, करेक्ट? तो ध्यान से वो देख लेना कि भाई 10 and 250 के बीच में चाहिए, या all 3 digit numbers चाहिए, या 2 digit numbers चाहिए, क्या है वो तुमको देखना पड़ेगा ठीक से, राइट? सो दिस इज द नेक्स्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आता है। ओके, नेक्स्ट सिंपल सा वेरिएशन ले रहा हूं, फाइंडिंग द टर्म्स फ्रॉम द लास्ट, फाइंडिंग टर्म फ्रॉम द लास्ट। फ्रॉम द लास्ट मतलब देखो क्या रहेगा, एक एपी गिवन रहेगा, a1, a2, a3, a4 डॉट 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 अप टू an, है ना? तो ये लास्ट टर्म है, लास्ट वाला टर्म, लास्ट टर्म। अब बोलते हैं पीछे से सिक्स्थ टर्म बताओ, फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, सेवेंथ टर्म फ्रॉम द लास्ट, पीछे से निकालने बोलते हैं। अभी तक देखो हम सामने से निकाल रहे थे ऐसे, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, टेंथ टर्म, लेकिन फ्रॉम द लास्ट बोला जाता है। सो दो मेथड है उसके, या तो यूज द फॉर्मूला, नया फॉर्मूला याद रखो। व्हाट इज द फॉर्मूला? इफ लेट्स से द लास्ट टर्म इज l, लास्ट टर्म को मैं l बोलता हूं, देन द nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला है, मतलब an फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे वो फॉर्मूला क्या होता था हमारा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n माइनस 1 इंटू डी तो एज इट इज है ना, ये प्लस के बदले यहां माइनस हो गया, और यहां फर्स्ट टर्म के बदले लास्ट टर्म आ गया, ठीक है? दैट इज द फॉर्मूला। तो या तो फॉर्मूला यूज करो, या तो एपी को उल्टा लिखो और ये सेम फॉर्मूला यूज करो। फॉर एग्जाम्पल देता हूं दोनों, है ना, और उस पे से बताता हूं। सी गाइस, दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। देखो एक एपी गिवन है, क्या है एपी? 10, 7, 4 डॉट 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 अप टू माइनस 62। बोला है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, पीछे से 11th टर्म बताओ। अच्छा, मुझे यहां पे बताओ व्हाट इज l? l इज द लास्ट टर्म, कितना है लास्ट टर्म हमारा? माइनस 62। d कितना है? d 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 इज माइनस 3, d का वैल्यू है माइनस 3। यस, n कितना है? 11th टर्म चाहिए हमको, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट।
डाल दो इस फॉर्मूला में। A11 फ्रॉम द लास्ट, पहले तो फॉर्मूला लिखो, an इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यस, ये फॉर्मूला आएगा। अब वैल्यूज डाल दो। A11 फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू, लास्ट टर्म कितना है माइनस 62 माइनस n कितना है 11 माइनस 1 इंटू d इज हाउ मच माइनस 3, करेक्ट। d इज माइनस 3 ना, डाल दो वैल्यूज। माइनस 62 माइनस ये कितना है 10 इंटू माइनस 3, यस। सो माइनस 60 माइनस ऑफ माइनस 30, मतलब माइनस 60 प्लस 30, yes or no? So how much is minus 60 plus 30? Minus 30. So this is the 11th term from the last. This is method 1, जो मैं कभी किसी को रिकमेंड भी नहीं करता और मैं खुद इस मेथड से नहीं करता हूं, बट ठीक है, बुक में ये दिया रहता है, ये करो। या तो दूसरा ऑप्शन, AP लिखा है, क्या दिया है 10 7 4 डॉट 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 माइनस 62। यस, इस AP को उल्टा लिख दो, उल्टा, तब भी तो वो AP ही रहेगा कि नहीं। देखो माइनस 62 पहले लिखूंगा, उल्टा लिख रहा हूं यार बस, है ना। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे D कितना है, D 3 माइनस 3 है, माइनस 3। सो माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 होते जा रहा है ना। तो इससे पहले वाला टर्म क्या रहेगा, एक पहले वाला माइनस 59, हाँ कि नहीं। फिर यहां लिखूंगा माइनस 59 डॉट 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 4 7 10, पूरा AP उल्टा लिख दिया मैंने, चलेगा क्या। नाउ यूज द जनरल फॉर्मूला, जो हम अभी तक कर रहे थे वो करना है ना। A कितना है फर्स्ट टर्म माइनस 62, D कितना है D कर दो, या ये वाला ले लो ना 10 माइनस 7 3, करेक्ट। N इज इक्वल टू 11, A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D, खत्म। जो हम अभी तक कर रहे थे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A कितना है माइनस 62 प्लस 10 इंटू D कितना है, अच्छा मैंने ये 60 लिख दिया ना यहाँ पे, गाइस ये 62 था, मैंने 60 क्यों लिख दिया पता नहीं, है ना। तो ये 32 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 3। सो माइनस 62 प्लस 30 इज माइनस 32, खत्म, करेक्ट। तो AP को उल्टा लिखा और नॉर्मल मेथड फॉलो करो, दैट्स इट। ऐसा समझो कि ये वाला AP दे रखा है, बोथ मेथड्स आर करेक्ट, दिस इज मेथड नंबर 2, है ना। या तो यूज दिस फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला याद करने का झंझट, है ना, प्लस एरर करने का चांसेस बहुत बढ़ता है। अदरवाइज ये सिर्फ AP को उल्टा लिखो, खत्म करो। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। देखो ये AP दे रखा है ना, इसको उल्टा लिख देता हूं मैं। AP इज इक्वल टू 253 कॉमा डॉट 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 13 8 3। अरे ऐसे आऊंगा तो पहले 13 आएगा, फिर 8 फिर 3, खत्म। अब नॉर्मल मेथड में सॉल्व करो इसको। A कितना है 253, D कितना है यहां से निकाल लो, 3 माइनस 8 कितना है, 3 माइनस 8 माइनस 5, यस। और देखो डिक्रीज होते जा रहा है, तो D नेगेटिव ही आने वाला है फॉर श्योर, करेक्ट। और क्या है, n इज इक्वल टू 20, तो A20 इज इक्वल टू A प्लस 19D। 253 प्लस 19 इंटू माइनस 5, 253 माइनस 19 5 जा 95, खत्म। ये कितना होगा 153 158, यस। सो 158 इज द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। आंसर लिखो, द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज 158। देखो ना यार, यहां कहीं तो आएगा 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, है ना। इससे छोटा आने वाला है, इन सबसे बड़ा आने वाला है, ऑब्वियसली सही है, ठीक है। सो 158 इज द 20th टर्म फ्रॉम द एंड। सो दिस इज इजियर मेथड। ये मेथड थोड़ा अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वैसे तो दोनों इजी है बट कंपैरेटिवली फाइन। सो पीछे से कोई भी टर्म कैसे फाइंड करना है, दैट इज द सॉल्यूशन, ठीक है।
ठीक है, we'll be taking a few general more questions on AP. yes, 2 APs मतलब इसका कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है, अभी कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फॉर दैट. 2 APs, दो अलग अलग AP है. 2 APs have the same common difference, दोनों का common difference same है. yes, the difference between their 100th term is 100. what is the difference between their 1000th term? देखो यहाँ पे दो अलग अलग AP है, ये है AP1 और इसको हम बोलेंगे AP2. yes, let the AP be given by A1, A2, A3, A4 dot 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 up to AN. ये वाला AP ऐसे लेते हैं, कैपिटल A1, A2, A3, A4 डॉट 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 अप टू AN. दो अलग अलग AP है ना. यहाँ पे देखो what is A2 minus A1? D. if A2 minus A1 is D, यहाँ पे भी A2 minus A1 will be D. they have the same common difference, तो common difference दोनों का हमने same लिया small d. yes, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि उनका कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, तो एक जगह स्मॉल डी ले लेना, दूसरी जगह कैपिटल डी ले लेना, अलग अलग है, दो अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है. चलो ठीक है, अब क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100. मतलब A100 माइनस A100 इज इक्वल टू 100. इसका 100th टर्म, 100 टर्म मतलब A100 और इसका 100 टर्म मतलब A100 इज इक्वल टू 100. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट 1000th टर्म? मतलब निकालने क्या बोला है, A1000 माइनस ऑफ A1000, इसका वैल्यू निकालने बोला है. ठीक है, यस, इसको सॉल्व करो जरा. व्हाट इज A100? A प्लस 99D माइनस इसका क्या आएगा, A प्लस 99D. यस, हम D तो स्मॉल ही रहना पड़ेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 100. फाइन, सो A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इज इक्वल टू 100. ये कटा, A माइनस A is equal to 100. This is my equation number 1. ठीक है, ये गिवन है, ये गिवन है. यस, अभी उन्होंने पूछा क्या है, A1000 A1000 माइनस A1000 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो लेट्स फाइंड आउट इट्स वैल्यू. A1000 माइनस A1000 कितना होगा, A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D. हाँ कि नहीं, A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D. करेक्ट, ये और ये कटा, कितना आया, A माइनस A. बट A माइनस A इज इक्वल टू 100 फ्रॉम 1. हाँ कि नहीं, therefore the difference between that 1000th term is also 100. ठीक है, इसके बदले कुछ भी क्वेश्चन आए, what is the difference between that 50th term? मतलब A50 माइनस A50 वो भी 100 ही होगा. अगर क्वेश्चन आता what is the difference between their 62nd term, A62 माइनस A62 वो भी 100 ही होगा. Yes, so the difference between their first term जितना होता है उतना ही बाकी सबका डिफरेंस भी होता है. Yes, दो अलग अलग AP अगर है, ये भी AP में है, ये भी AP में है, और अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, देन इनके फर्स्ट टर्म्स में जो डिफरेंस रहेगा A माइनस A, वही उनके हर टर्म का डिफरेंस रहता है. द ओनली रीजन बीइंग क्योंकि उनका D सेम है. अगर D सेम नहीं होता तो ये रूल या ये लॉजिक काम नहीं कर पाता. आ रही है बात समझ? यस, सो दो AP है अलग अलग, है ना, A1 A2 अप टू AN, कैपिटल A1 A2 अप टू AN.
उनका कॉमन डिफरेंस सेम है d, मतलब a2 माइनस a1 d है, ये भी स्मॉल d. And given is the difference between their 100th term, a100 minus a100 is given. बोल रहा है find the difference between their 1000th term, a1000 minus a1000. आई बात समझ? Yes? चलो सेम टाइप का एक और लेता हूँ, थोड़ा सा अलग रहेगा यार, एग्जैक्ट सेम नहीं मिलेगा अभी. See, two APs have the same common difference. दो अलग अलग AP है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है. द फर्स्ट टर्म ऑफ वन AP इज -3. ये देखो, ये है AP1. यस, ये इसका फर्स्ट टर्म क्या है? -3. फिर A2, A3 अप टू AN होगा कुछ तो, है ना. एंड दैट ऑफ द अदर इज -6. ये दूसरा AP है, इसका फर्स्ट टर्म -6 है ना, लेकिन बाकी A2, A3 डॉट 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 अप टू AN होगा कुछ. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर फिफ्थ टर्म्स. यस, तो बच्चों जो फर्स्ट टर्म में डिफरेंस रहेगा वही उनके फिफ्थ में डिफरेंस होगा, बिकॉज कॉमन डिफरेंस सेम है. हाँ कि नहीं? यस, तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस क्या है देखो तो जरा. यस, a माइनस a इज इक्वल टू -3 माइनस ऑफ -6. Yes, so -3 plus 6, 3. The difference between their first terms is 3. This is my equation number 1. इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोल के चलेगा कि हाँ ये 3 आया तो फिफ्थ टर्म का डिफरेंस 3. ये तो तुम्हारे लिए, तुमको समझे इसलिए बताया, लेकिन एग्जाम में तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा. कैसे? a5 माइनस a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d माइनस a प्लस 4d. हाँ कि नहीं? d सेम है तो स्मॉल d लेना पड़ेगा. a प्लस 4d माइनस a माइनस 4d, 4d से 4d कटा. हाँ कि नहीं? इज इक्वल टू a माइनस a. a माइनस a कितना है? 3. हेंस द डिफरेंस बिटवीन देयर फिफ्थ टर्म इज 3. इनफैक्ट एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बट पहला टर्म दे रखा है, पिछले क्वेश्चन में पहला टर्म भी दिया नहीं था, तो हमने निकाल लिया उसको. 100 का डिफरेंस दे रखा है, बेसिकली यहाँ फर्स्ट टर्म का डिफरेंस दे रखा है. फर्स्ट टर्म दिया है मतलब उनका डिफरेंस दे दिया है ना. गेटिंग द पॉइंट? यस, परफेक्ट. तो ये था एक और टाइप का क्वेश्चन. यस, अब थोड़े और रैंडम क्वेश्चन, 2-3 सिंपल. चलो बच्चों वाला सम. What is the common difference of the AP in which A17 minus A14 is 36? A17 minus A14 is 36. A17 को लिखा A plus 16D minus A14 को लिखा A plus 13D is equal to 36. A plus 16D minus A minus 13D is equal to 36. A से A कटा, 3D is equal to 36, D is equal to 12. अरे क्या यार, क्यों दिया ये? इतने अच्छे करने के बाद ऐसा बकवास क्वेश्चन, ठीक है ना. सो जस्ट फाइंड द कॉमन डिफरेंस ना, तो D इज द कॉमन डिफरेंस, हो गया, बात खत्म. एक ही AP है, सिंगल AP है ना, जिसमें A17 माइनस A14 दे रखा है. ओके, 3 टर्म्स दे रखी है. सी 3x plus k, 2x plus 9 and x plus 13 are 3 consecutive terms of AP. Find the value of k. k का वैल्यू निकालो. ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन. ठीक है, सो यहां देखो 1 2 3 are 3 consecutive terms. consecutive मतलब एक के बाद एक आने वाले. so let the first term be is equal to 3x plus k, है ना. a2 is equal to 2x plus 9 and the third term may be a3 is equal to x plus 13. हाँ कि नहीं? Yes, AP है ये. All these 3 terms are in AP, है ना. तो AP का a1, a2, a3 given है. We know that in an AP a2 minus a1 is same as a3 minus a2 which is equal to d. हाँ कि नहीं? मतलब a2 minus a1 कितना है देखो, 2x plus 9 minus 3x plus k will be equal to
a3 minus a2 x plus 13 minus 2x plus 9 इक्वल है ये, इज इक्वल टू डी है, लेकिन डी का काम नहीं है हमको। इसको सॉल्व करो, के की वैल्यू मिल जाएगी 2x plus 9 minus 3x minus k, x plus 13 minus 2x minus 9 है ना। 3 minus 2 is minus x plus 9 minus k is equal to x minus 2x is minus x, 9 minus 13 minus 9 yes plus 4, माइनस एक्स से माइनस एक्स कटा, k इधर जाएगा 4 इधर आएगा, k इज इक्वल टू 5, 9 माइनस 4 मिल गया k का वैल्यू। एज सिंपल एज दैट, खत्म, कुछ भी नहीं बचा। या ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ ap this and ap this आर इक्वल। यस मतलब इसका nth टर्म और इसका nth टर्म इक्वल अगर है तो कौन से नंबर का टर्म होगा वो। यस, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n मतलब इसका nth टर्म और इसका nth टर्म कब जाकर के इक्वल होगा। देखो थोड़ा सा मीनिंग समझा देता हूँ, सॉल्विंग तो बहुत इजी। 63, 65, 67 डॉट 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 ये जा रहे हैं है ना। ये दूसरा AP, AP1, AP2, AP2 क्या है देखो 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। इनका डिफरेंस बताओ कितना है 2। ये देखो 2 2 2 2 से बढ़ रहा है ये। इनका डिफरेंस बताओ कितना है 7 7 7 7 7 से बढ़ रहा है ना। तो यहां कहीं तो इसका टर्म और यहां कहीं तो इसका टर्म दोनों इक्वल हो जाएंगे। यस, जैसे अलग अलग है ना 63 3 ये तो यहाँ पे एक टर्म ऐसा आएगा कि इन दोनों के एपी में सेम टर्म रहेगा, उसका टर्म नंबर फाइंड करना है हमको। nth टर्म फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इसका an और इसका an इक्वल होगा। आई बात समझ? या सुनो, अब देखो AP1 ले लो जरा, पहले इसका डेटा लिख लेते हैं 63, 65, 67 डॉट 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 है ना। व्हाट इज A is equal to 63. What is D? D is equal to 2. Yes? चलो AP2 में what is A? 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। A कितना है 3, D कितना है 10, करेक्ट। वी नो दैट उन्होंने पूछा है nth टर्म ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू द nth टर्म ऑफ सेकेंड, an इज इक्वल टू an है ना। तो इसका हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू स्मॉल d इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D। यस, अरे क्योंकि इसका d अलग है बच्चों, इसका d अलग है तो मुझे स्मॉल और कैपिटल अलग अलग टर्म्स यूज करना पड़ेगा, हाँ कि नहीं। इसको कैपिटल A लेते, इसको कैपिटल D लेते, चलेगा फाइन। लेकिन n तो दोनों का सेम रहेगा, छोटा छोटा n, बिकॉज nth टर्म दोनों में सेम आने वाली है। यस, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 10। ठीक है। यस, सिंप्लीफाई दिस, व्हाट डू यू गेट 63 प्लस ये कितना आएगा 2n माइनस 2, 3 प्लस 10n माइनस 10। सारे नंबर्स एक साइड लाओ, सारा n एक साइड लेके आओ। 63 माइनस 2 इज 61 और ये 3 माइनस 10 इज माइनस 7, इधर आके हो जाएगा प्लस 7। ये 10n, ये 2n इधर जाके हो जाएगा माइनस 2n है ना। 61 माइनस 7, माइनस नहीं प्लस 7, तो ये हो जाएगा 68। यस 68 और ये हो जाएगा 8n, करेक्ट। गड़बड़ हुआ क्या कुछ, n का वैल्यू नहीं आ रहा है, d की वैल्यू गलत हो गई ना। अरे d 10 कैसे आएगा, 10 माइनस 3 7, d की वैल्यू 7 है, बोलते भी नहीं हो यार तुम लोग, कैसे बच्चे। यस, ये हो जाएगा 7n, 7 1 जा 7, करेक्ट। सो मिस्टेक हो गया ना मेरा, काट दो।
63 minus 2 is 61 है ना. ये 3 minus 7, how much is 3 minus 7? 3 minus 7 is minus 4. इधर आके हो जाएगा plus 4, करेक्ट. इधर है 7n और ये इधर जाके minus 2n. So 65 is equal to 5n. n is equal to 65 by 5, 13. Yes, दोनों का 13th टर्म सेम रहेगा. 13th टर्म इसका a13 और 13th टर्म इसका a13, करेक्ट. बस यही आंसर है. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म्स आर सेम. अगर हम दोनों का वैल्यू निकाल के देखते हैं, लेट्स ट्राई तो करो, है ना. पहला a13 निकालो इसका. a13 is equal to a plus 12d. कितना आएगा देखो, 63 plus 12 2s are 24, है ना. 7, 87. दूसरे का 13 टर्म निकालो, a13 a plus कितना d, 12d. a कितना है उसका 3 plus 12 into d कितना है 7. 12 7 जा 84 plus 3 87. देखो दोनों का 13th टर्म सेम है. मीनिंग बता रहा हूं मैं सिर्फ तुमको कि इसका जो 13th टर्म है वो भी 87 होगा, इसका जो 13th टर्म है वो भी 87 होगा. तो उन्होंने बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, कौन सा टर्म दोनों का सेम है. सो 13th टर्म इज सेम. ठीक है. तो AP1 लिखो, AP2 लिखो. AP1 के वैल्यूज, AP2 के वैल्यूज, एंड an is equal to an. Substitute the values. A plus n minus 1d, capital A plus n minus 1 into capital D. Put the values, find the value of n. So answer आता है 13th term. n is equal to 13. Important question है, ठीक है. और ऐसे बुक में भी काफी क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है. So that's it for today. अरे हुआ नहीं है अभी तो, यही एक्सरसाइज बाकी है ना. इस पे और कुछ सम्स आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स अभी इसके बाकी है. उसके बाद में एक लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एसएन चालू होगा. बिफोर दैट यू हैव टू नाउ डू सम होमवर्क. यस, अच्छा खासा क्वेश्चंस होमवर्क देने वाला हूँ बेस्ड ऑन ऑल दैट वी स्टडी. अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज रिमेनिंग, जो मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगा. होमवर्क आई विल सेंड ऑन टेलीग्राम. यस, प्लीज डू इट, कंप्लीट करो एंड सेंड मी द सॉल्यूशंस एंड डाउट्स बाय 12 बहुत लेट हो जाएगा, 10 AM टुमारो. इफ आई डोंट रिसीव डाउट्स फ्रॉम यू, मैं वो कल सॉल्व नहीं करूंगा सेशन में. यस, फिर रोते बैठना. राइट, आई टोल्ड यू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेटेज भी बहुत ज्यादा है. फाइन, सो दैट्स इट. टेक केयर, सी यू गाइज, बाय.